So spleen is located close to the diaphragm, the left side of the body, behind the mid-axillary line. Point to be noted is behind or posterior to the mid-axillary line. It is not like this. Spleen is not located like this. It is behind the mid-axillary line. The anterior-most point of the spleen lies posterior to the mid-axillary line. So this is a view of the posterior abdominal wall, or the posterior view of the trunk. There you can see the spleen, which lies oblique with respect to the horizontal or the vertical plane, while parallel to the rib. It is parallel to the posterior ends or the posterior aspects of the rib. So this is how the spleen is located. ठीक है, समझ रहे? इस तरह से यहाँ पे posterior abdominal wall के close. The anterior most end lies posterior to the mid-axillary line. Then it is between the diaphragm and the fundus of the stomach. In between the diaphragm and fundus of the stomach. It corresponds with the long axis of the 9th, 10th and 11th rib. 9th, 10th and 11th rib. So it is extended between the 9th and the 11th rib. Its long axis is parallel to the 10th rib. Correspond to the 10th rib. That is the MCQ which is asked. The long axis of the spleen lies along the 10th rib. Coincides with the 10th rib. The other measurements like thickness, is 1 inch in thickness, 3 inch in breadth, 5 inch long, 7 ounce is the weight, and the 9th, 10th and the 11th is its location or extent along the rib. So all of these are easy to remember. They are the even numbers in succession, the 1, 3, 5, 7, 9, 10 except the 10. 9, 10 and 11. ठीक है? Then the surface projection or surface marking for the spleen is 5 centimeter away. Its medial end is 5 centimeter away from the midline or the spine of the T10 thoracic vertebra. Spine of the 10th thoracic vertebra. 5 centimeter away. When it comes to the shape, in majority of the cases it is wedge shape. It is wedge shape. In 44% of the subjects, and the 42% it is
tetrahedral, and in rest of the cases may be flat or the triangular. So this is the anteromedial view. This is the anteromedial view. Anteromedial view. ठीक है, समझ रहे? पहले स्प्लीन की लोकेशन आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। लेफ्ट साइड में पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के क्लोज, ठीक है, पोस्टीरियर टू द मिड एक्सिलरी लाइन। So this is the anteromedial view, you can say. So spleen is having three borders. One is the superior border, the inferior border, and the hilum. It is the intermediate border. ये क्या है? Intermediate border. So three borders and the two surfaces. One is the visceral surface, जिसको हम एंटीरोमीडियल सरफेस कह रहे हैं, जो विसरा के साथ है कॉन्टेक्ट में। एक जो पोस्टीरियर वाला है, पोस्टीरियोलेटरल सरफेस या पोस्टीरियर सरफेस जो स्प्लेन का, दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद द डायफ्राम एंड रिब। डायफ्राम एंड रिब, उसको क्या बोलते हैं? डायफ्रैग्मेटिक सरफेस। तो दो सरफेस होगी, डायफ्रैग्मेटिक सरफेस एंड विसरल सरफेस। विसरल सरफेस पे अलग अलग विसराज के इंप्रेशन होते हैं, जहां से स्प्लीन जिस विसरा के कांटेक्ट में है, तो वो क्या है? इंप्रेशन है अलग अलग विसरा का। जैसे देखो, सुपीरियर बॉर्डर और इंटरमीडिएट बॉर्डर के बीच में गैस्ट्रिक इंप्रेशन, जहां से फंडस ऑफ स्टोमक के कांटेक्ट में रहता है। आइलम आप लोग इतनी स्ट्रक्चर्स का पढ़ चुके हैं, आइलम लंग्स का भी पढ़ा है ना? आइलम लंग्स में भी पढ़ा है, ठीक है। तो आइलम में कोई दिक्कत नहीं है, जहां से न्यूरोवैस्कुलेचर एंटर और एग्जिट हो रहा है फॉर एन ऑर्गन, दैट इज द आइलम। रीनल इंप्रेशन मीन्स क्लोजनेस ऑफ द स्प्लीन विद द ऑब्वियसली लेफ्ट किडनी, ठीक है। दैट इज द रीनल इंप्रेशन इन बिटवीन द inferior border and the intermediate border. This is the intermediate border. Colic impression. Colic impression is its relation with the colic flexor. Colic flexor. Sorry, the splenic flexor, or the junction or the meeting point of the transverse colon and the descending colon. ठीक है, वो क्या हो गया? colic flexor. कॉलोन के दो फ्लेक्सर होते हैं, हाँ तुम बताओ, ई बेच क्यों ना, बताओ कॉलिक फ्लेक्सर, इफेटिक फ्लेक्सर कहाँ कहाँ होते हैं और किसके रिलेशन में है ये? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सर? इसकी बात हो रही है। कॉलिक फ्लेक्सर, इफेटिक फ्लेक्सर क्या चीज है, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? एब्डोमेन, वो तो ठीक है, बट एब्डोमेन में कौन सी स्ट्रक्चर? एब्डोमेन तो तुम्हारे 1-1.5 महीने तक चलेगी क्लासेस, तुम लास्ट तक यही कहते रहोगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे सर एब्डोमेन। इधर आ जाओ तुम दोनों आगे की शीट। Actually they are kinking of the colon, they are kinkings of the colon or the flexure or the bending of the colon. Hepatic flexor close to the liver, junction of the, or you can say the contact ascending with the transverse colon. The splenic flexor is transverse colon with descending colon. क्या दिक्कत है? इधर आओ, इस तरफ आओ। अब यार कौन नो कर रहा है बार बार?
9:15 के बाद अलाउड नहीं हो क्लास में। कौन नो कर रहा है बार बार? परमानेंटली एब्सेंट मार्क कर देंगे नेक्स्ट 7 डेज के लिए। क्या तरीका है ये? So spleen is basically located in the left hypochondrium close to the posterior abdominal wall, in between the diaphragm and the fundus of the stomach. This is the anteromedial view. This is the posterior lateral view of the back side of the spleen, where it is closely related with the 9th, 10th and 11th rib. This is a transverse section. Like if it is spleen, this is a transverse section of the spleen. After it is being cut, you can see this view. Superior border, this one. The intermediate border is close to the hilum, and the inferior border. This is the diaphragmatic surface. This is visceral surface. Visceral surface पे यहाँ पे कौन सा इंप्रेशन है? गैस्ट्रिक। यहाँ पे रीनल। कॉलिक तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन लेने के बाद नहीं दिखेगा, ठीक है? So 3 borders, 2 surfaces and 2 ends. The posterior end, which is close to the vertebral column, the posterior end and the anterior end. Posterior end is rounded, blunt, while the anterior end is broad. Anterior end is broad, ठीक है? And the posterior end is also known as superior end or the medial end, ठीक है? समझ रहे हो ना? सुपीरियर एंड और मीडियल एंड क्यों बोलते हैं पोस्टीरियर एंड को? सपोज ये स्प्लीन ऐसे ना, इस तरह से है पोस्टीरियरली, तो ये मीडियल एंड, पोस्टीरियर एंड एंड सुपीरियर एंड, बिकॉज इट लाइज ऑब्लिकली। अगर ऐसा होता तो सुपीरियर इंफीरियर नहीं होता, ऐसा है, ठीक है? तो पोस्टीरियर एंड, सुपीरियर एंड, मीडियल एंड, एंटीरियर एंड, लेटरल एंड और द इंफीरियर एंड, ठीक है? देखो स्प्लीन में कोई भी ऑर्गन हो, आपको अगर लोकेशन, एक्सटेंट, उसकी किस तरह से वो पोजीशन बॉडी में अगर पता है तो बाकी चीजें तो सिर्फ आपको जो है ज्यादा उसमें समझने का कुछ नहीं, उसमें तो मेमोराइज ही करना है, ये आर्टरी, ये नर्व, ये, ठीक है? लेकिन आपको लोकेशन, एक्सटेंट पता है तो रिलेशंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेशंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हर शॉर्ट नोट का एक मेजर पार्ट जो होता है वो रिलेशंस का होता है, वो थोड़ा टफ लगता है बच्चों को। वो इसलिए लगता है कि वो ऑर्गन की लोकेशन, उसके एक्सटेंशन को वो नहीं समझते हैं, सीधा उसको रटना शुरू कर देते हैं। स्प्लीन ब्ला 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 1 3 5 ये सब, ठीक है? 3 इंप्रेशन होते हैं। 3 क्यों होते हैं उसका रीजन नहीं देखते कि किस तरह से लोकेटेड और कहाँ लोकेटेड, ठीक है? This is longitudinal section or you can say the coronal section. स्प्लीन के लिए तो ये जो है आपका ट्रांसवर्स ही है, ठीक है? कोरोनल सेक्शन लिया आपने स्प्लीन के लेवल पे, तो क्या क्या मिलेगा? ऊपर लंग, प्लूरा, रिसेस, just outer to the spleen is the peritoneum, then diaphragm, then the pleura, then lungs, then intercostal spaces and rib, ठीक है? This is the question which was asked in your assistant professor examination of Rajasthan Public Service Commission, जो हम लोग गए थे हमारे डिपार्टमेंट से 3-4 लोग, उसमें यही क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द स्प्लीन
in its position. The lienorenal ligament, phrenicocholic ligament, ठीक है, gastrosplenic ligament, ये 3-4 ऑप्शन. This is a phrenicocholic ligament which supports. देखो नाम इसका देखो, phrenicocholic. Phrenico means diaphragm, colic means colon. So colic flexor से लेके डायफ्राम तक, ठीक है, ये क्या है, phrenicocholic. इसमें तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये तो पेरिटोनियम तक है, और जो पैराइटल पेरिटोनियम है वो बिल्कुल को स्टिक होती है, ठीक है, डायफ्राम के एकदम चिपकी हुई रहती है. Now come to the peritoneal relations of the spleen. Actually, spleen is almost completely covered by the peritoneum, except where the various peritoneal folds meet and forms the ligament. ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है पूरी कवर्ड है, ये देखो ब्लू लाइन, पूरा स्प्लीन पेरिटोनियम से कवर्ड है. उसके बाद हम पेंक्रियाज पढ़ेंगे, उसमें ओनली और ओनली पेंक्रियाज का टेल जो होता है, टेल ऑफ पेंक्रियाज, वही पेरिटोनियम से कवर्ड. रेस्ट ऑफ द पेंक्रियाज इज रिट्रोपेरिटोनियल, रिट्रोपेरिटोनियल लाइक किडनी. देखो स्प्लीन यहां तक है, फिर उसके बाद ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये क्या बना रही है, फोल्ड, जो ग्रीन सर्कल बना हुआ है. अपर वन इज द लिनोरीनल लिगामेंट, लिनोरीनल लिगामेंट. लोअर वन इज द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. गैस्ट्रोस्प्लेनिक तो सिंपल है, गैस्ट्रो स्प्लीन, स्टमक एंड स्प्लीन के बीच का लिगामेंट, ठीक है. लिनोरीनल, देखो स्प्लीन जो वर्ड है वो एक लैंग्वेज का नहीं है, इज टेकन फ्रॉम बोथ ग्रीक एंड लैटिन. स्प्लेन इज ए ग्रीक वर्ड, स्प्लेन इज ए ग्रीक वर्ड, एंड लीन इज ए लैटिन वर्ड. दोनों को मिला के क्या बन गया, स्प्लीन, ठीक है. तो ये लीनो वर्ड जहां पे भी आएगा, बहुत आगे भी आएगा, ठीक है, कमिंग सेमेस्टर्स में, तो इसको रखना. लीनो का मीन्स रिलेटेड टू स्प्लीन, लिनोरीनल. दोनों लिगामेंट्स के या दोनों फोल्ड्स के आपको कंटेंट तो क्लियर दिख रहे हैं. गैस्ट्रोस्प्लेनिक में क्या है, एक आर्टरी है, और दी 3 और 4 5 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. क्या है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है. किसकी ब्रांच होती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी की. पढ़ा ना तुमने अभी, स्टमक अभी तो हो गया, स्टमक और लीवर, तो बहुत सारी चीजें आएगी जो स्टमक और लीवर में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट का कंटेंट क्या है, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, एंड द लिनोरीनल का स्प्लेनिक आर्टरी along with टेल ऑफ पेंक्रियाज, ठीक है. और दोनों में जो कॉमन है वो एक्सेसरी स्प्लीन्स है. क्या है, एक्सेसरी स्प्लीन्स. तो किसी भी केस में अगर स्प्लीनेक्टोमी करते हैं किसी पेशेंट के लिए, देन यू हैव टू सर्च फॉर द एक्सेसरी स्प्लीन. जहां पे भी एब्डोमेन में एक्सेसरी स्प्लीन है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सब वहां पे आपको सर्च करनी है. सर्च, सीटी स्कैन, MRI, डाई इंजेक्ट करने के बाद भी कर सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके से. क्योंकि सपोज कि क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का पेशेंट है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया का पेशेंट है, उसको स्प्लीन रिमूव करना जरूरी है. नहीं किया तो उसकी लिम्फोसाइट्स हर बार ट्रैप होती है और वो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. उस केस में हम क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टोमी. आपने सिर्फ मेन मास को हटा दिया स्प्लीन का, एक्सेसरी स्प्लीन्स नहीं रिमूव की तो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं, फिर उसको कंप्लेंट्स कंटिन्यू रहेंगे, चाहे वो कम डिग्री में हो, उसका कंप्लेंट्स या सिम्टम्स कंटिन्यू रहेंगे. So you have to search for the accessory spleen.
तो जो भी साइट्स हैं एक्सेसरी स्प्लीन्स की, अलग अलग रिसर्च आर्टिकल्स में अलग अलग साइट्स या कॉमन भी है, तो वो ये सब है, आपको दिख रहा है यहाँ पे जो राउंडेड सर्कल्स हैं स्मॉल ब्लू कलर से, पर्पल से, ये क्या है? एक्सेसरी स्प्लीन्स। दे आर फाउंड आउट टू द राउंड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। अच्छा, स्प्लीन का जो डेवलपमेंट होता है दैट इज लोबुलेटेड, इट डेवलप्स फ्रॉम द डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम, ठीक है, mesenchymal cells of the dorsal mesogastrium. That is why its superior border is notched. देखा ना, मोस्टली स्प्लीन में क्या होता है, सुपीरियर बॉर्डर पे इस तरह से नॉच होती है। तो एग्जामिनर आपको जब शॉर्ट पार्ट का वायवा होता है तो इस प्रेजेंस ऑफ नोचिस का रीजन क्या है ये पूछता है, ठीक है। दैट इज द लोबुलेटेड डेवलपमेंट। क्या होता है? लोबुलेटेड डेवलपमेंट, अलग अलग लॉब्स में डेवलप होता है, देन दीज लॉब्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। ये हो गए पेरिटोनियल रिलेशन, दो लिगामेंट हो गए, दोनों कंट्रेंट्स हो गए, एक्सेसरी स्प्लीन हो गई, ठीक है। देखो इस डायग्राम से आपको थोड़ा समझ में एक रफ आइडिया आ रहा होगा कि एब्डोमेन में अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर जाएंगे तो क्या होगा? स्टमक, एंटीरियरली क्या है? स्टमक, देन स्प्लीन, क्लोज टू स्प्लीन इज पेंक्रियास एंड द पोस्टीरियर मोस्ट इज द किडनी। किडनी, एओर्टा, वर्टिब्रल कॉलम, ये सब क्या है? बिल्कुल पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पास है, ठीक है। मुझे याद है जब मैंने प्री फिजिक्स का एग्जाम दिया था 2010 में, तो उसमें ये क्वेश्चन था। उस टाइम अलग अलग होता था, राजस्थान पीजी, ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया पीजी में ये क्वेश्चन था, एओर्टा इज लोकेटेड टू, देयर वर 4 ऑप्शन, मिड लाइन इन फ्रंट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, राइट along the right side of the vertebral column, left side of the vertebral column, इस तरह से 3-4 उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। So aorta is actually, or the abdominal aorta descends just left to the vertebral column, just left to the vertebral column, और inferior vena cava right to the vertebral column। वो मिड लाइन से थोड़ा सा ज्यादा दूर रहता है आईवीसी, तो उसमें तो उतना कंफ्यूजन नहीं होता, दिक्कत होती है वो aorta की रहती है, क्योंकि ये पहले राइट साइड से ऐसे असेंडिंग होता है, ठीक है, फिर डिसेंड होता है, thorax then abdomen। arterial supply and venous drainage। What are the functions of spleen? Leukocyte differentiation और तीन चार मेजर फंक्शन। आरबीसी डिस्ट्रक्शन क्यों करना है? वाई? ओल्ड इनकेपेबल आरबीसी जो होते हैं, जो नॉन फंक्शनल होती है, उनको ट्रैप कर लेती है, ठीक है, और फिर ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और आयरन उनको सेपरेट करके आयरन को लीवर में भेज देती है ना। तो दैट आयरन इज स्टोर्ड। और बताओ ये फंक्शन, एक तो ये हो गया, और लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन इन केस ऑफ एडल्ट। फिटस में इरिथ्रोपोइसिस होता है, फिटस में क्या होता है? स्प्लीन में इरिथ्रोपोइसिस होता है, फॉर्मेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आरबीसी। लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट से मतलब है कि बी लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन। प्लाज्मा सेल, व्हाट इज प्लाज्मा सेल? दोज बी सेल्स विच आर टैग्ड, उनके ऊपर टैग लग गया या फिर उनको डिफरेंशिएट हो गए। डिफरेंशिएट मीन्स स्पेसिफिक बी सेल्स होगी। जैसे कोई नया एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, ठीक है, जैसे कोविड था वायरस,
कोई भी नया एंटीजन, चाहे वो बैक्टीरियल, फंगल, वायरल कोई भी हो, अगर वो बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी की जो टी लिम्फोसाइट्स वगैरह है वो इम्यून रेस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड बी सेल्स के साथ। कुछ बी सेल्स होती है, दे आर कन्वर्टेड और दे आर कन्वर्टेड इनटू मेमोरी सेल्स। तो वो क्या करती है कि आइडेंटिफाई कर लेती है उस एंटीजन को, और उसकी एक जो प्रोजेनी, एक जनरेशन बी सेल्स की है, उसको ये टास्क दिया जाता है कि आपको इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है। जब भी नेक्स्ट टाइम ये एंटीजन एंटर करेगा, इमीडिएटली एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कुछ अमाउंट में तो एंटीबॉडी रहेंगे ब्लड में, बट बाकी बी सेल्स का ये फंक्शन क्या है कि इमीडिएटली वो एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, ताकि इतना टाइम नहीं लगे एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो उनको क्या कहते हैं? प्लाज्मा सेल्स। दे आर एक्चुअली बी lymphocytes. They are destined to act against a particular antigen for the formation of antibodies. ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स भी कहाँ रहती है? लिम्फ, इसमें स्प्लीन में। अलावा स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी भी है। स्प्लीन क्या है? स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी। इसको हम रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम कहते हैं। मैक्रोफेजेस भी होती है यहाँ पे, तो वो क्या करती है? ट्रैप कर लेती है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को। ठीक है, इससे आगे तो कहाँ बिठाएं तुम्हें। तो कम टू दी ब्लड सप्लाई। देखो, आर्टीरियल सप्लाई में तुम्हें सीलिएक ट्रंक पढ़ लिया क्या? सीलिएक ट्रंक नहीं पढ़ा? फर्स्ट ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा। सीलिएक ट्रंक क्या है? एब्डोमिनल एओर्टा की जो लार्जर ब्रांच है ना, फर्स्ट लार्जर ब्रांच इज सीलिएक ट्रंक। सीलिएक ट्रंक से आपके लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हिपेटिक एंड स्प्लेनिक। ठीक है, देखो ये जो सीलिएक ट्रंक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रांचेज को तुम अच्छे से अगर समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, पहले तो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, दूसरा जो कंफ्यूजन होता है गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, गैस्ट्रोडोडिनल, पैंक्रेटिकोडोडिनल। फिर पैंक्रेटिकोडोडिनल में भी सुपीरियर इंफीरियर, फिर सुपीरियर इंफीरियर के एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन। तो इसको अगर डायग्राम में तुम समझ लोगे तो बहुत काम आएगा ये। डोडिनम की ब्लड सप्लाई में, पैंक्रियाज की ब्लड सप्लाई में, उस पे एमसीक्यूज भी बहुत बनते हैं। ठीक है, तो सीलिएक ट्रंक से तीन ब्रांचेस कौन सी राइज होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लेनिक एंड द कॉमन हिपेटिक। ठीक है, फिर कॉमन हिपेटिक से आपके राइट गैस्ट्रिक, कॉमन हिपेटिक से राइट गैस्ट्रिक। ठीक है, और फिर हिपेटिक आर्टरी कंटिन्यू होती है। फिर हिपेटिक आर्टरी आगे सिस्टिक आर्टरी भी देती है गॉल ब्लैडर को। ठीक है, तो दिस J shape yellow colored structure is the pancreas. The venous drainage, जो स्प्लीन की वेन्स है वो किसमें ड्रेन कर रही है? आगे, along with pancreatic veins, the short gastric vein, the left gastroepiploic vein and the pancreatic veins, ये तीनों मिलके क्या बना रही है? आगे splenic vein. Splenic vein and the superior mesenteric vein, they forms the portal vein. क्या बना रहे हैं? portal vein. तो अल्टीमेटली किसमें ड्रेन कर रहा है स्प्लीन? पोर्टल वेन। ठीक है, अच्छा, स्प्लेनिक वेन के अंदर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन ड्रेन कर रही है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक, इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, दे आर सेपरेट ब्रांचेस फ्रॉम द एओर्टा। सुपीरियर इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी क्या है? डायरेक्ट ब्रांचेस है एओर्टा से।
और सुपीरियर इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन दोनों अलग अलग, इंफीरियर मेजेंट्रिक वेन स्प्लेनिक वेन में ओपन हो रही है और बाद में स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन दोनों मिलके क्या बना रही है, पोर्टल वेन। वेस्क्यूलर सेगमेंट्स ऑफ द स्प्लीन, देखो स्प्लेनिक आर्टरी जो है वो एंटर करती है स्प्लीन के अंदर, एंटर करने के बाद या उसकी जो भी ब्रांचेज हैं दे आर हैविंग सेपरेट टेरिटरी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, में एनास्टोमोसिस नहीं होता है। ये जो ब्लैक लाइन है हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक की एवास्कुलर प्लेन, तो यहां अगर स्प्लेनिक रप्चर हुआ है ट्रॉमा के केस में इस साइड में अपर सेगमेंट में या सुपीरियर सेगमेंट में, तो आपको सिर्फ इतना ही स्प्लीन रिमूव करना है, ठीक है। और ट्रॉमा की वजह से अगर ये सेगमेंट इसमें यहाँ पे रप्चर हुआ, ब्लीडिंग हो रही है, तो यही करना है, पूरा स्प्लीन नहीं करना है, समझ रहे। तो सर्जन को अगर ये नॉलेज है कि एवास्कुलर प्लेन से ऊपर है या नीचे है, तो पेशेंट का स्प्लीन थोड़ा बहुत सेव हो सकता है, ठीक है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। अगर ये वास्कुलर प्लेन नहीं होता सपोज, तो आपने इतना सा सेगमेंट अगर निकाल देते जो इंजरी वाला है, तो ब्लीडिंग यहाँ से कंटिन्यू इस तरफ होती, ठीक है। एवास्कुलर प्लेन की वजह से आधा स्प्लीन सेव हो जाता है। So that was about the spleen, anatomy of the spleen. Now come to the clinical aspect. Generally, spleen is not palpable. ठीक है, we can't palpate the spleen, but liver generally palpable होता है, the right costal margin, ठीक है। spleen generally palpable नहीं होता है until unless it increases up to 2 times, इसका साइज 2 गुना बड़ा होगा तब तक वो फिट नहीं होगा, and it may extend up to the 10, मतलब 10 टाइम्स तक स्प्लीन जनरली एनलार्ज हो सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज स्प्लीनोमेगाली, एनलार्जमेंट ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, दैट इज स्प्लीनोमेगाली। इसके कॉजेज क्या होते हैं, मलेरिया, मलेरिया के केस में भी स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है। व्हाई, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा होता है मलेरिया में, क्यों, बहुत सारे जो है मीरोजोइड्स वो जो तुम पढ़ते थे वो सारे कहाँ होते हैं, आरबीसी के अंदर ना, वो क्या करते हैं कि साइज को डिस्टॉर्ट कर देते हैं, तो बाई के वह वो लॉस्ट हो जाता है स्ट्रक्चर, और जो एनलार्ज आरबीसीज हैं वो क्या ट्रैप हो जाती है इसमें स्प्लीन में, ठीक है। तो मलेरिया के केस में पेशेंट क्या है, फीवर, एनीमिया, ठीक है, पेल टंग, पेल जो कंजक्टाइवा पेलनेस, ठीक है, अलोंग विथ फीवर, पेन, इस साइड में अगर पेन है या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के क्लोज जहाँ पे भी स्प्लीन है, अगर पेशेंट कंप्लेन करा फीवर, पेन, फीवर विथ चिल्स, पेन, एनीमिया एंड द पेलनेस ऑफ द कंजक्टाइवा, तो ये सब कॉम्बिनेशन है, तो क्या है, मोस्ट प्रोबेबली मलेरिया। स्पेशली वो अगर मलेरिया प्रोन जोन से आया जहाँ पे मलेरिया ज्यादा होता है, जैसे ट्राइबल बेल्ट ऑफ राजस्थान, ट्राइबल बेल्ट में, तो और क्या होता है मलेरिया के अलावा कॉजेज, काला आजार, क्रोनिक माइलोइड ल्यूकीमिया, बहुत सारे कॉजेज है, बहुत सारे कॉजेज है, तो ये मेजर है, ठीक है। दूसरा स्प्लीनोमेगाली में क्या है कि आपको जनरली क्लिनिकल साइड में ये वो पूछते हैं कि भाई स्प्लीनोमेगाली अगर हो रही तो उसको कैसे पाल्पेट करते हैं, मान लो कि 2 डबल से ज्यादा एनलार्ज होगी इसके, तो शुड स्टार्ट फ्रॉम द राइट इलाइक फोसा, बिकॉज स्प्लीन आफ्टर इट्स एनलार्जमेंट प्रोग्रेसेस टुवर्ड राइट साइड डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह से इधर जाता है, समझ गए। तो इधर से स्टार्ट करते हैं ताकि उसका इस एंड को आप पाल्पेट कर सकें। आजकल तो नहीं करते हैं, बहुत कम हो गया है, जो
पुराने जो डॉक्टर्स होते थे वो पेशेंट को क्लिनिकली ज्यादा डायग्नोज करते थे। आजकल हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन, पेशेंट को देखा नहीं, उसको इंस्पेक्शन, ये जो पढ़ाते हैं तो फिजियोलॉजी में चारों स्टेप बहुत रेयरली फॉलो करते हैं। तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, उसमें टाइम भी वेस्ट होता है पेशेंट का। जब तक रिपोर्ट्स आती है तब तक आप काफी ट्रीटमेंट भी कर चुके होते हैं अगर पहले ही डायग्नोज कर लिया तो। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप पेशेंट को डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन दे आर जस्ट सपोर्टिव। मेनली आपका जो नॉलेज, विजडम, एक्यूमेन है वही होता है। ठीक है, इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन सपोर्टिव होते हैं। एवरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट इज बीइंग रिटन एट द लोअर बॉटम इज एज प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। मीन्स कि हमने जो लिखा है आप उसके बेसिस पे ट्रीट नहीं करें, आप क्लिनिकल सिम्टम साइंस देखें और फिर कोरिलेट करके फाइनल डायग्नोसिस पे आए। तो ये था स्प्लीन। ठीक है, इसको पाल्पेट कैसे करते हैं एनलार्ज स्प्लीन को, स्प्लीनोमेगाली के कॉजेज क्या होते हैं, और स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी, स्प्लीन को कब हम निकालते हैं। जैसे मलेरिया का पेशेंट है, बहुत ज्यादा स्प्लीन एनलार्ज हो गया है, आपने बहुत ब्लड इन्फ्यूज करने के बावजूद भी जो है उसका हीमोग्लोबिन लेवल इंप्रूव नहीं हो रहा है। ठीक है, रेयर केस में करते हैं। ट्रॉमा, ट्रॉमा भी बहुत कॉमन कॉज है। स्प्लीन इज द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड एब्डोमिनल ऑर्गन। ठीक है, ट्रॉमा के केस में। Now come to the pancreas. Pan means all. Pancreas is the flesh, the soft mass or the flesh. So pancreas अगर किसी ने देखा हो अपने यहाँ पे कैडेवर्स में, तो इसी तरह का है जिस तरह का यहाँ दिख रहा है, ऑलमोस्ट सॉफ्ट लोबुलेटेड फ्लैश लाइक J shape elongated mass. This lies horizontally or obliquely in the abdomen. ठीक है, कि पेंक्रियाज के पार्ट कौन से होते हैं, ये क्या है, टेल, देन बॉडी, नेक, हेड एंड दी अनसिनेट प्रोसेस। तो 4 पार्ट्स हो गए, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल, और 2 प्रोसेस है। एक हेड से प्रोसेस, हेड का जो प्रोसेस है उसको हम अनसिनेट प्रोसेस, और एक बॉडी का दैट इज ट्यूबर ओमेंटल, ट्यूबर ओमेंटल। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने 4 बार, वो क्वेश्चन ऊपर वाला और उसके जो फॉलोइंग नीचे 4 हैं ट्रेल में। आंसर की तुम्हें सोचना है ना। देखो, कोई भी टॉपिक जब तुम्हें पढ़ने का ऐसा लग रहा हो कि बोरिंग है, इसमें मन नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले उस चैप्टर का जो बॉक्सेज हैं क्लिनिकल उनको पढ़ लो। ठीक है, उससे थोड़ा एक, या फिर ये जो लास्ट में क्लिनिकल बॉक्स दिया होता है से स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, उसको पढ़ लो। ये 2 चीजें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको फिर उसकी एनाटॉमी एक तो इजी भी लगेगी और इंटरेस्टिंग भी होगी। नहीं तो एनाटॉमी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत टफ भी लगता है तीनों सब्जेक्ट से, लेकिन बहुत इजी है अगर आप उसको एक तरीके से पढ़ें। ठीक है, तो पेशेंट को एक्चुअली में जॉन्डिस है। पेशेंट को क्या है, जॉन्डिस है, और जॉन्डिस की वजह से ही वो सारे, उसका जो बाइल का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, उसकी वजह से ही सारे साइन सिम्टम्स। जॉन्डिस के केस में इचिंग होगा। ठीक है, एपेटाइट लॉस है ना, भूख भी नहीं लगती। ठीक है, अगर डाइजेशन ही नहीं हो रहा है, बाइल का ही ऑब्स्ट्रक्शन है तो नहीं होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा। पेशेंट को पल्पेबल गॉल ब्लैडर एंड असाइटिस। सिंपली केस लगता है कि ऑब्स्ट्रक्ट जॉन्डिस के उसमें, जॉन्डिस सॉरी बाइल के रास्ते में क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है, बट एक्चुअली इट इज ए केस ऑफ कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियाज। इसलिए क्वेश्चन ने पूछा एनाटॉमिकल बेसिस, समझ रहे हैं,
एनाटॉमिकल बेसिस मीन्स कि उस रीजन की एनाटॉमी में ऐसा क्या है, कौन सी स्ट्रक्चर है जो बाइल को ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। ठीक है, तो हेड ऑफ पैंक्रियाज है दैट इज रिलेटेड विद द बाइल डक्ट। ये तो पढ़ा है तुमने नीट के उसमें। हमारे टाइम पे तो ये क्वेश्चन आते थे नीट में, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और कितनी डक्ट होती है और कितना क्या है, एम्पुला वाइटर और ये सब। So this is about the location of the pancreas. एक तरफ स्केच है उसका, एक तरफ उसका सिटी इमेज, सिटी। ठीक है, तो पहले सब सिटी स्कैन देखने लग गई। इसको समझोगे तभी ये समझ में आए, नहीं तो उसमें तो ब्लैक एंड व्हाइट है ओनली। ठीक है, तो देखो लेवल ऑफ पैंक्रियाज कहाँ है, T2 से L3 तक, T12 टू L3। जो हेड और अनसिनेट प्रोसेस है, इट लाइज इन द कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूओडेनम। कॉन्केविटी ऑफ द ड्यूओडेनम के अंदर है ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। टेल ऑफ पैंक्रियाज कहां तक है, हाइलम ऑफ स्प्लीन के पोस्टीरियरली क्या है पैंक्रियाज के, आईवीसी एंड एओर्टा। IVC and aorta, not aorta। कल एक बीपीटी वाले का वो वायवा था तो वो बार बार उसको किताब आता, अरोटा नहीं, AORT है, ओ पहले आ रहा है बाद में आ रहा है। ठीक है, तो एरोटा नहीं है, कोई इसको अरोटा कर रहा है। अरोटा बोलती पता लग जाता है कि इसने बहुत कम पढ़ाई की है, मतलब क्योंकि अगर बार बार रिवाइज करते तो कभी ना कभी तो ध्यान जाता ना स्पेलिंग पे, AORT। इसको कुछ समझ में आ रहा है? ये एक तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन है, है लेवल ऑफ पैंक्रियाज पे, एंड यू आर व्यूइंग इट दिस ट्रांसवर्स सेक्शन फ्रॉम द इंफीरियर साइड। यहां से ट्रांसवर्स सेक्शन लेके फिर आप इस तरफ से ही देख रहे हैं। ये तो बॉडी ऑफ वर्टिब्रा है। ठीक है, उसके जस्ट आगे ये एओर्टा है, ये आईवीसी। क्या है, आईवीसी। ये लीवर, ये राइट साइड है ना, जिधर आईवीसी है उधर ही ये लीवर है, और ये पैंक्रियाज। ये क्या है, पैंक्रियाज, स्प्लेनिक वेन, किडनी। ठीक है, इसमें राइट किडनी का सेक्शन नहीं आया, क्या रीजन? लेफ्ट किडनी आया, राइट किडनी पे आया क्या? राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है उसका लोकेशन। ठीक है, पैंक्रियाज के पोस्टीरियर रिलेशंस में आपको लेफ्ट किडनी तो मिलेगा यहाँ पे, लेकिन राइट किडनी नहीं मिलेगा। So these are the anterior relations, pancreas anterior relations of the head। ठीक है, हेड के एंटीरियर रिलेशंस में ये देखो, ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। ठीक है, जेजुनम के लूप एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स आर anterior to the uncinate process while posterior to the neck, posterior to the neck। ठीक है, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी भी कंप्रेस हो जाती है कई बार। यहां का अगर ट्यूमर है तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को भी कंप्रेस कर देता है, कार्सिनोमा पैंक्रियाज। मैंने एक कार्सिनोमा पैंक्रियाज का केस देखा था, तो उसको जो है सेक्शन ड्यूओडेनम का भी हो गया। ठीक है, क्योंकि वो ड्यूओडेनम के कॉन्केविटी में, तो जैसे ही कुछ खाता उसको वोमिटिंग हो जाता। वोमिटिंग का रीजन क्या था, पाइलोरस और स्टोमक तो नॉर्मल है, वो तो बोलस को 2-3 घंटे बाद पुश कर रहा है ड्यूओडेनम में,
ड्यूडेनम ऑब्स्ट्रक्टेड है, स्टमक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ही सीवियर और फास्ट उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो कहां जाएगा, इधर ही आएगा। ठीक है, वेट लॉस, वॉमिटिंग, ठीक है, और उसमें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का भी ऑब्स्ट्रक्शन, वो उसकी किंकिंग होगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी कंप्रेस होगी, तो इंटेस्टाइन और गट की जो है मोटिलिटी भी लॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें हैं इसके एंटीरियरली, ये चारों यहां लिखे हुए हैं, एंटी रिलेशंस ऑफ द हेड ऑफ पैंक्रियाज। पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ हेड, देखो बाइल डक्ट कितना क्लोज है, जब तुम डिसेक्शन में देखोगे तो कई बार तो बाइल डक्ट पूरा पैंक्रियाज पैंक्रियाटिक टिश्यू के अंदर ही है, उसके अंदर एम्बेडेड है पूरा। एन आईवीसी, ठीक है, पोर्टल वेन का रिलेशन इस तरह से है, नेक के जस्ट पोस्टीरियर, पोस्टीरियर टू द नेक, क्योंकि ये तो ट्यूबर ओमेंटल हो गया, यहां से बॉडी स्टार्ट हो गया, बॉडी ऑफ पैंक्रियाज। देखो लेक्चर में जो पढ़ रहे हो तो देख उसको जाके डिसेक्शन हॉल में सर एब्डोमेन में तो ही फायदा होगा। वहां जाके बैठ जाते हो इस टेबल से उस टेबल, जो शुरू में आए थे उन दोस्तों के साथ जाके बैठना है तो फर्स्ट ए वाला पीछे बैठा ई में, फिर लास्ट में घूमते हैं प्रो, हम सोचते हैं प्रॉक्सी लगा रहा है, नहीं सर बुक लेने जा, पहले वहां रख दी थी, ये तुम्हारा बंद करना पड़ेगा, तुम सब लोग जो है ना उधर इधर से उधर। पोस्टीरियर रिलेशंस ऑफ नेक ऑफ पैंक्रियाज, तो देखो अगर आपने लोकेशन को उसको अंडरस्टैंड कर लिया, पैंक्रियाज इज ए रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन क्लोजली related to the posterior abdominal wall, ठीक है, just anterior to the kidneys, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियरली क्या है, एओर्टा, ठीक है, एओर्टा में यहां से जो राइज होता है वो क्या है, सीलियक ट्रंक, अभी हमने इसकी ब्लड सप्लाई में देखा था स्प्लीन की, ठीक है। पैंक्रियाज का जो सुपीरियर बॉर्डर है उसके अलोंग रन कर रही थी यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। तो स्प्लेनिक वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन and the formation of portal vein, all these things take place at the behind of the body of pancreas. सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का ओरिजिन भी उसके पोस्टीरियर है। देखो एंटीरियर रिलेशंस, these are the posterior, इसमें एंटीरियर भी, एंटीरियर रिलेशंस भी दिख रहे हैं, इंफीरियर भी और सुपीरियर भी, ठीक है। इमेज में तीनों सुपीरियर या सुपीरियर बॉर्डर पे क्या क्या आर्टरीज है, एंटीरियरली क्या है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन का रूट और द मेसेंट्री ऑफ द कोलोन एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेसल्स। इंफीरियरली क्या है, डोडेनोजेजुनल फ्लेक्सर, कॉइल्स ऑफ जेजुनम, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है। पोस्टीरियरली आरपीसी, एओर्टा, लेफ्ट किडनी, ये सब क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन। रीनल वेसल्स, रीनल वेसल्स, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का कोर्स भी दिखाया हुआ है, दिस इज द होल पिक्चर, ठीक है। कैडेवर में जब तुम स्टमक को रिफ्लेक्ट करोगे तो भी तुम्हें इजीली पैंक्रियाज दिखेगा नहीं, तो सर्च करना पड़ेगा। जो इन सिटू स्ट्रक्चर है उसकी, कोई भी स्ट्रक्चर को बाहर निकालने के बाद अगर तुम देखते हो किसी के भरोसे छोड़ रखा, डिसेक्शन जाके ऑर्गन देख लेते हैं या डिसेक्टेड पार्ट देख लेते हैं, इसके बजाय जाके इन सिटू जो चल रहा है रहो कि कितना हो गया, उसको देखो एक बार जाके क्या क्या उसके
रिलेशन है इन सिटू, ठीक है। यूरेटर, यूरेटर देखो, यूरेटर भी इस तरह से यहाँ पे लोकेटेड होता है। राइट किडनी जो है वो ड्यूोडेनम के भी इस तरफ है, राइट साइड में, इसलिए वो उसके रिलेशन में उसके नहीं आ रही है, ठीक है। जनरली हमारा इमेजिनेशन क्या होता है कि अगर पेंक्रियास जैसे हॉरिजॉन्टल है तो इधर राइट, ये राइट साइड में पोस्टीरियरली राइट किडनी होगी, लेफ्ट साइड में पोस्टीरियरली लेफ्ट किडनी होगी। पैंक्रियाटिक डक्ट, in the 90% of subjects only main pancreatic duct is present, while rest of the 10% are also having accessory pancreatic duct। तो दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों डक्ट जो है आपकी पैरेलल नहीं है। देखो ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है which lies posterior to the accessory pancreatic duct। जो अनसिनेट प्रोसेस से जो आ रही है दैट इज एक्सेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट एंड इट लाइज एंटीरियर। रिलेशन क्या है, ये मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का एंटीरियर है और ओपनिंग भी इसकी सुपीरियर टू द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इनटू द ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम में दोनों अलग अलग ओपन हो रही है, जो एक्सेसरी हो रही है वो अपर लेवल पे है थोड़ा, इन द सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूोडेनम, इसको हम क्या बोलते हैं, माइनर ड्यूोडेनल पेपिला। और जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट है इट फ्यूजेस विद द बाइल डक्ट एंड ओपन्स इनटू द एम्पुला ऑफ वेटर और द हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला। हिपेटोपैंक्रियाटिक मीन्स लीवर एंड पैंक्रियाज। तो लीवर से बाइल डक्ट जो आता है और वो दोनों पैंक्रियाज की डक्ट दोनों मिलके ही ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका नाम आपको मेन पैंक्रियाटिक डक्ट का अदर नेम क्या, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ विल्सन, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी एक्सेसरी, एम्पुला ऑफ वेटर, मेजर माइनर ड्यूोडेनल पेपिला। ये 4-5 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। As and when this duct or main pancreatic duct progresses, the minor ductules opens into it। तो एक पैटर्न बन गया, इसको क्या बोलते हैं, हेरिंग बोन पैटर्न। हेरिंग बोन पैटर्न। एक्चुअली हेरिंग इज ए स्पीसीज ऑफ फिश। उसकी जो बोन्स होती है उसमें वी शेप लाइन्स होती हैं, ठीक है, एक के बाद एक। इट इज कॉल्ड एज हेरिंग बोन पैटर्न। कई क्लोथ्स में भी आपने देखा होगा इस तरह से, ठीक है, कंटिन्यूअस वी शेप सुपर जो है सक्सेसिव लाइन्स होती है, इसको बोलते हैं हेरिंग बोन पैटर्न। about the blood supply and the venous drainage of pancreas। बायोमेट्रिक काम कर रहा है क्या आज? नहीं कर रहा? देखो इसमें कितने सोर्स बोले, मतलब इसी के लिए आते हैं, सिर्फ अटेंडेंस के लिए कि जो है हमारा काम हो जाए। हमें घर वालों ने भेज दिया फीस भर के, तो हम आ रहे हैं और वहां से यहाँ उठ के आ जाएंगे। बहुत कम लोग जो है एफर्ट डालते हैं और वो पढ़ते हैं बस। बाकी सब तो ऐसा है कि मतलब कान बंद कर लेते, कोई हमें पढ़ा नहीं दे। मतलब आपका कलीग अगर आंसर दे रहा है तो वो भी नहीं सुनना, टीचर पढ़ा रहा है वो भी नहीं सुनना। देखो ब्लड सप्लाई में
मेन आर्टरी जो सप्लाई करती है दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी। कौन करती है? स्प्लेनिक आर्टरी। और उसके अलावा हिपेटिक आर्टरी की जो ब्रांचेज है, गैस्ट्रोडोडिनल एंड देन सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डोडिनल आर्टरी। लोअर पार्ट को जो सप्लाई करा दैट इज इंफीरियर पैंक्रियाटिको-डोडिनल। तो इंफीरियर पैंक्रियाटिको-डोडिनल किसकी ब्रांच है? इंफीरियर पैंक्रियाटिको-डोडिनल आर्टरी किसकी ब्रांच है? इंफीरियर, सुपीरियर मिजेंट्रिक की, सुपीरियर मिजेंट्रिक की। उसमें दिख रहा है साफ, सुपीरियर वाली डायरेक्ट ब्रांच आ रही है वहां से, गैस्ट्रोडोडिनल की है, सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डोडिनल। और यहीं पे आपका पाइलोरस ऑफ स्टमक होता है। देखो यहां से डोडिनम स्टार्ट हो रहा है ना, या फर्स्ट पार्ट डोडिनम, यहाँ पे पाइलोरस होता है। पाइलोरस या लेसर कर्वेचर एक ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर के चांसेस होते हैं। ठीक है, वहां से अगर एब्डोमिनल जो स्टमक की जो वॉल है अगर उसका इरोजन हो गया एसिड की वजह से, तो पेशेंट को वॉमिटिंग के अंदर ब्लड आता है, एंड दैट इज ब्लड फ्रॉम दी पैंक्रियाटिक दिस गैस्ट्रोडोडिनल आर्टरी। ठीक है, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। ठीक है, हेमेटोमेसिस इन केस ऑफ पेप्टिक अल्सर इज बिकॉज ऑफ, हेमेटोमेसिस मीन्स ब्लड इन वॉमिटिंग, एमेसिस एंड हिमेट। ठीक है, तो उसका भी एमसीक्यू प्रीफिजी में आता है, कौन सी आर्टरी से ब्लीडिंग होता है, तो उसको एक बार देख लेना। देन ये आपकी होगी पैंक्रियाटिको-डोडिनल और सुपीरियर मिजेंट्रिक की ब्रांचेस जो इसको सप्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये ब्लड सप्लाई। वीनस ड्रेनेज में सेम वही है, स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करता है पैंक्रियाज का मेजर ब्लड। ठीक है, फिर ये पैंक्रियाटिको-डोडिनल वेन्स भी है। देखो दोनों वेन ओपन सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन में हो रही है, दोनों वेन जो है वो सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन में ओपन हो रही है, लेकिन दोनों आर्टरीज जो सेम नाम की है वो अलग अलग आर्टरी से आ रही है। ऐसे जो भी रीजन है बॉडी में उनको लोग एक पेपर में बना के रख लो। स्पेसिफिकली जो पोर्टल और सिस्टेमिक जो है सर्कुलेशन, उसके जो जंक्शन होते हैं वो बहुत क्लिनिकली इंपॉर्टेंट भी होते हैं। इसमें रेक्टम की तो ब्लड सप्लाई है पर्टिकुलरली, या वीनस ड्रेनेज है, तो जब भी रेक्टम आएगा तो बताएंगे। वो भी एक है जिसमें सेम जो कॉरेस्पॉन्डिंग नेम की आर्टरीज और वेन्स होती है उनका अलग अलग होता है रिलेशन। जैसे आर्टरी यहाँ पे दोनों नाम की आर्टरीज और पैंक्रियाटिको-डोडिनल सुपीरियर और इंफीरियर अलग अलग आर्टरीज थे, लेकिन वेन्स दोनों एक में ही। ठीक है, और सुपीरियर पैंक्रियाटिको-डोडिनल वेन जो है समटाइम्स इट ओपन्स डायरेक्टली इनटू द पोर्टल वेन, क्या है कभी कभी डायरेक्टली पोर्टल वेन में भी ओपन होती है। गॉट इट? कईयों का दिमाग थोड़ा थक गया है, मतलब उनके फुट बढ़ गया। कई ऐसे हैं कि बिल्कुल एकदम फ्रेश है जैसे आए थे, नहीं? लास्ट स्लाइड है। So that was all about the spleen and pancreas. Pancreas की थोड़ी क्लिनिकल देख लेते हैं। बहुत बड़ी इमरजेंसी है पैंक्रियाटाइटिस, और आज की जनरेशन के लिए तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो यंग जनरेशन को इंस्टा जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, इंस्टा जनरेशन जो है, देखो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस एक सीरियस इमरजेंसी है। ठीक है, और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस बहुत फैटल है। पैंक्रियाटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज।
जनरली रीजन्स जो होते हैं वो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द पेनक्रेटिक डक्ट, एक्यूट, और जो है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ इंटेक ऑफ अल्कोहल, ठीक है, इसलिए मैं इंस्टा जनरेशन का कह रहा था, ठीक है। तो जोश जोश में क्या होता है कि नीट पी लेते हैं, ठीक है। उस केस में क्या होता है, अल्कोहल जनरली एब्जॉर्ब होने के बाद पेंक्रियाज को डैमेज करता है, और पेंक्रियाटिक जो जूस होता है जिसको जो डाइजेस्टिव होता है, पेंक्रियाज इज ए मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। पेंक्रियाटिक जूस क्या करता है कि जब ऑटो डाइजेशन करता है, पूरे पेंक्रियाज को ही ऑटो डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सारे, ठीक है। ऑटो डाइजेशन ऑफ पेंक्रियाज, देन रिलीज ऑफ these enzymes into the posterior abdominal cavity, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, और एक्यूट पेंक्रेटाइटिस एक इमरजेंसी है, रेयर पेशेंट बचते हैं एक्यूट पेंक्रेटाइटिस वाले। सीवियर बैक पेन, सीवियर पेन इन द एपिगैस्ट्रियम विच रेडिएट्स टू द बैक along with fever, जैसे एकदम नॉर्मल थे ये, तो एकदम से आज सुबह क्या हुआ कि एकदम से पेन हुआ और एकदम से जो है बैक को रेडिएट हुआ, यहाँ पे पेन होने लगा, और पेशेंट विद इन 24 आवर्स एक्सपायर हो जाते हैं, बचते नहीं, रेयरली होता है, ठीक है। तो या तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है पेंक्रेटिक डक्ट के अंदर स्टोन की वजह से, या फिर अल्कोहल का इंजेक्शन होता है सीवियर, ठीक है। मोस्टली यही केसेस होते हैं। उसके अलावा वायरल भी है मम्स, और उसमें क्या होता है कि मंथ इनिशियल होता है तो वायरल होता है, तो पेशेंट को डायग्नोज पहले से किया हुआ होता है। जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं वो यही होती है, ठीक है।